the seniors with me. So I am very thankful to Jadhav sir and Rotary Club for inviting me. Yeah. So each field in medicine nowadays is expanding. You see, nephrology is going to that extent that we are doing renal transplant. All our kidney patients, all our kidney patients who are suffering with bad kidneys goes to a renal transplant, they live a normal life. Similarly, all our liver patient, similarly all our liver patients who have bad liver failures, who undergo liver transplant, do extremely well after liver transplant. I have seen more than 100 liver transplant patients doing very well. And in the field of cancer, which was supposed to be the most deadliest disease and incurable and very difficult to treat, and patients used to almost die, the mortality was more than 90%. Now the time has come up with such advanced therapies, they are doing extremely well with minimum side effects and they can live a normal life. The reason I choose this branch, as ma'am rightly told, that everyone is going towards the commonly chose pathway of nephrology, cardiology, but infectious disease is sadly said to be the branch which has lot of problems. You know, in medicine now, recently last week we have AMR, antimicrobial resistant stewardship, which includes that in India we are using antibiotics so commonly, we are getting antibiotics so easily that our gut, our natural system is colonized. It means populated with that organism which are resistant to almost 60% of antibiotics. Almost 80% of Indian population are having that bugs in their body naturally which are resistant to many organisms. And when the immune system goes down, when they cross their 65 and they get this infection, most commonly they get urine infection, and we see that there are hardly few options left for them, and we'll end up with giving higher antibiotics which are more costly, which are more toxic to the kidneys. So to know that subject very well, I chose this branch, and today I would like to throw a light on a part which is nicely conquered by infectious disease field, and that is HIV. So I still remember my dad, most of us are in that age group where HIV in 1980 it was unknown, and my father used to tell me when I was doing my MBBS ki HIV in my days was recently discovered. My father did his MD in 1984, and at that time there are only few notes like Xerox copies, or you can say research papers, that there is some virus that disturbs the immune system of the body and patients almost in 1 year they die, and the reason is not known. The virus came from where, what it does, how it does, and there is no treatment. So like TB, people of HIV, which was difficult to understand that what is happening with them, and there was no practical treatment. Now we have come with that era where we are living with people of HIV around us, living normal life with us without any comorbidities or without any much problems. So I chose this title which is very unique, and it says D equals to D. It means if a person is detected to have HIV, it will 100% transmit the disease to another person. So D equals to D, and now we have come up to the era where U equals to U is happening, that is undetectable is untransmittable. If you control your disease very well, you are practically living a normal life, you can have normal activities without transmitting the disease to other person. So I begin with my talk with a little story which I recently told, but the story begins 44 years back. This virus is very young now. So 44 years back, we used to see rare type of pneumonias, rare type of infections in youth, especially the gay population. So nowadays we are coming up with the knowledge of what are gay, what is lesbian, but it was there since a very long time, especially in the Europe and French area, right? So initially it was predominantly seen in Africa, and people used to see
African people are dying of some rare disease and rare cancers which were difficult to diagnose also, and they labeled, and they could just check that person in detail, and they used to find that that person has some vague swelling on their body which we call as lymph nodes, and they die of some skin lesions, very bad lesions, and finally they die. So they label that virus they thought that where is the what is the peculiarity of this person, and then got to know that this person goes in forest for hunting. So they labeled that there is something which is correlating with virus, there is something which kills the patient and it is associated with person who are doing foresting or hunting. And sorry, so it was found that chimpanzees has that virus, and that same virus is seen in humans also. So initially that virus was called as SIV, that is simian immunodeficiency virus, and research was going on. Since viruses are so microscopic, it was difficult to know them or to isolate them, to see them in microscope. It was very difficult. You require an electron microscope to identify the virus. So it was a thought going on, and similarly in Africa the same case was happening in Europe, and where it was seen in gay population. So they used to say in Africa SIV, the same virus was known as GRID, gay related immunodeficiency virus, and it used to cause multiple lymph nodes and rare pneumonias. So the same virus which was known as GRID, that is gay related immunodeficiency virus, because we don't know, it was seen only in the gay population, but eventually it was realized that this virus is peculiarly affecting the immune cells of the body. So finally they come up with the thought that we should rename this virus as HTLDV, that is human leukocyte T cell lymphocyte virus, because it was affecting the lymphocytes only. Still they couldn't see the virus in microscope. So in 1981, for the first time, they could see some virus in the lymph node of the person. Lymph node, for easy language, is normal the organ which helps the body to drain the body fluids, right? So it was found that this person has big lymph nodes, and the virus could isolate it from that part. And finally in 1983 they could isolate, and the virus, an electron microscopy picture helped us to identify this virus in the lymphocytes. These are the lymphocytes of the human, and they used to kill the lymphocytes of human. And 1983 was the first time when, you know, I told you my father was doing 1984, he was doing MD, and at that time this virus was coming into the picture. And this is the Pasteur Institute in France which published the virus photograph and the peculiarity that how it is very closely linked to the lymphocytes. And these two doctors were the pioneer in identifying the bacteria, the virus. So you know, 1980, so not Indian system, the entire world is very slow in appreciating the true knowledge. And so in 1984 the virus got detected, isolated, and it took almost more than 20 years for them to identify that this person has got such a good knowledge to identify this area, and they got the Nobel Prize for that. What about India? We are just talking about the world data. So in 1986 these two ladies found out that in Chennai there are a lot of sex workers, prostitutes, who used to get infected with similar type of illness, where they could difficult to identify that why they are getting ill, why they are getting again and again fever, and they used to die. And these two ladies finally could identify the first HIV virus in India, in Chennai, in 1986. So like I told, every virus has some affinity. सगळ्या व्हायरसला एक गोष्ट खूप आवडते. For example, COVID. As you all know, COVID loves lungs. कोविडच्या पेशंटला श्वसनाचा त्रास होतो, breathing difficulty. So COVID virus loves lung tissue and it damages that, so it causes low oxygen. Similarly, dengue virus, very common, we know dengue very well.
सो डेंगूमध्ये प्लेटलेट कमी होतात बिकॉज द व्हायरस हॅज गॉट सम ॲफिनिटी टुवर्ड्स द प्लेटलेट्स अँड दॅट्स वाय द प्लेटलेट्स आर लो. सिमिलरली रेबीज व्हायरस जे डॉग्सला होतो, कुत्रं चावल्यानंतर काय होतं, पेशंट बिकम्स व्हेरी व्हायलंट, इरिटेबल अँड फायनली दे डाय ऑफ हायपर ब्रेन ॲक्टिव्हिटी. सो रेबीज व्हायरस लव्स नर्व सेल्स, ब्रेन सेल्स, अँड पेशंट्स ऑलमोस्ट die because of the excessive irritability to the brain. Similarly, hepatitis virus, the name itself says की त्या व्हायरसला लिव्हर खूप आवडतं म्हणून त्याला हेपॅटायटिस नाव दिलं. सो दॅट व्हायरस stays in the liver, damages the liver and cause liver failure and liver cirrhosis. And again chikungunya, everyone has been aware of this problem की चिकनगुन्या जॉईंट दुखतात. सो इट हॅज स्पेशल ॲफिनिटी टुवर्ड्स द सायनोव्हियल टिश्यू जे जॉईंटचे टिश्यूज असतात. सो फायनली द पेशंट हॅज लॉट ऑफ जॉईंट पेन्स. And the topic for today is HIV. So HIV loves our immune cells, right? So patient's immune system is involved, the immune cells are damaged and finally the patient lands up with low immunity, right? So what happens? का virus करतो काय? So this is the normal human cell which is the lymphocyte or so called immune cell, and this is the virus, and this is the electron microscopy picture. That virus recognize this, he has affinity, त्याला प्रेम आहे या सेल्सशी, सो त्याला चिटकतो. आफ्टर इट गेट अटॅच्ड इट गोज इनसाइड द ह्युमन सेल लाईक दिस पिक्चर. आफ्टर इट गेट अटॅच्ड इट गोज इनसाइड द ह्युमन सेल अँड स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट. तो ह्युमन सेलच्या न्यूक्लियसला जाऊन सांगतो की प्लीज स्टॉप युअर प्रोडक्शन, तू तुझं नॉर्मल काम बंद कर आणि माझं काम कर. आणि ही पुशेस द बॉडी सेल्स म्हणतात नाही 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 आम्ही नाही करणार तुझं काम. तो व्हायरस खूप शार्प असतो, तो काय करतो, एक एन्झाईम रिलीज करतो रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज नावाचा. त्याच्याने तो स्वतःचा जो रूप आहे तो बदलतो अँड इट चेंजेस इट सेल्फ लाईक अ ह्युमन सेल. आणि आता सेलला कळतं की हा तर ह्युमन पार्ट आहे. नाव इट गेट अटॅच टू द DNA ऑफ ह्युमन अँड इट सेज दॅट आता माझे प्रोटीन्स तयार कर. सो यू कॅन सी आफ्टर द अटॅचमेंट टू द न्यूक्लियस it starts producing the viral proteins, and when a sufficient quantity of viral protein Hindi English is oh sorry yes. So finally क्या होता है कि फाइनली जब ये वायरस ह्यूमन सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरा ही प्रोटीन बनाना, दूसरे का प्रोटीन, खुद का प्रोटीन नहीं बनाना, और वो उसको बुद्धू बनाता है एंड वायरस खुद के प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है. तो पूरा सेल जो होता है पहले एक वायरस से इन्फेक्ट होता है, अपना खुद का प्रोटीन बनाना शुरू करता है, और आप देख सकते हो कि वायरस जो ह्यूमन सेल है पूरा वायरस से भर जाता है. फाइनली ये जो इम्यून सेल है फूट जाता है, उसके अंदर इतना ताकत ही नहीं रहता है कि वो उसको पकड़ सके, और वो फूट जाता है एंड वायरस बाहर निकलता है. बाहर निकल के वो क्या करता है, दूसरे इम्यून सेल को पकड़ता है, राइट. एंड जो एक्टिव सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल रहते हैं. एक रहता है फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने वाले सेल्स जो बेसिक एक्टिविटी को हेल्प करते हैं, और कुछ रहते हैं डॉर्मेंट स्टेज, आराम करते रहते हैं. तो वो एक्टिव सेल्स में जाके रेप्लिकेशन करता है और डॉर्मेंट स्टेज वाले सेल्स में जाके भी बैठता है, लेकिन वहाँ जाके सो जाता है. तो क्या होता है कि एक्टिव सेल्स खून के अंदर मिक्स होके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं. एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, तो देखो ये वायरस कैसे हमारे सेल्स पे जाके चिपक जाता है. अंदर जाने के बाद ये हमारे DNA के पास जाता है, और DNA में जाके उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम से खुद का स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, और ये ह्यूमन सेल जैसा बिहेव करने लग जाता है. वो RNA का DNA बन जाता है, और फिर वो बोलता है कि अभी मेरे प्रोटीन्स बनाना शुरू करो. और ये देखो अभी हमारे बॉडी के सेल्स जो है उसमें से प्रोटीन्स बनाना शुरू करते हैं, एंड ये जो है ये सब प्रोटीन्स धीरे 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 करके सेल्स में भरने लगते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, राइट. फाइनली हाँ एक स्टेज आता है जिसमें ये सेल इतने बढ़ जाते हैं कि दिस आर इम्यून सेल्स, हाँ, और ये वायरस उसमें से फूट के बाहर निकलते हैं. इतने फूटते हैं कि इम्यून सेल का क्वांटिटी जो है नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर 500 से 1500 रहता है. जो वाइट सेल्स के भी प्योर सेल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं CD4 सेल्स, द फाइटर सेल्स, जो सबसे पहले बॉडी को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के ये खुद का है या दूसरे का है. ऐसे सेल को जाके पकड़ता है वो.
नॉर्मली किसी और सेल को नहीं पकड़ेगा, प्लेटलेट को नहीं पकड़ेगा, हीमोग्लोबिन को नहीं पकड़ेगा, वो सिर्फ प्योर रेड सेल को पकड़ेगा जो फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। सो अभी आप सोचो कि ऐसा वायरस है जो इम्यून सेल को भी पकड़ रहा है और जो भी प्राइमरी जो फ्रंट लाइन वर्कर जिसको हम बोलते हैं फ्रंट लाइन सोल्जर्स, उसी को जाके ब्रेक कर रहा है, तो हमारा आगे का सिस्टम कितना फ्लॉप होगा। क्योंकि उसके पास ही वॉकी टॉकी है, वही दूसरे बड़े सेल्स ऑफिसर्स को जाके बोलेगा ना कि यहाँ पे अटैक हुआ है तो हमको सिग्नल और आर्मी भेजो, हम उसी को पैरालाइज कर रहे हैं। तो क्या होता है, तो HIV स्प्रेड कैसे होता है। हमने देखा कि वायरस बॉडी में आता है, इम्यून सेल को फोड़ देता है, आगे हम देखेंगे उसके असर क्या होते हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे कि स्प्रेड कैसे होता है। सो पहले तो मालूम नहीं था, मंकीज़ में दिखता है ये वायरस, उसके लिए उसका नाम रखा था SIV, सीमियन वायरस, राइट। मंकीज़ को सीमियन वायरस कहते, सीमियन कहते हैं, राइट। सो डिस्कवरी के बाद मालूम पड़ा कि ये वायरस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में मोस्ट डेंजरस इज़ द सीमेन एंड द वजाइनल सिक्रीशंस। ये दोनों के अंदर वायरल का कॉपीज इतने ज़्यादा रहते हैं कि जस्ट अ सिंगल कॉन्टैक्ट विद अ पॉजिटिव पर्सन विल ईजिली ट्रांसमिट द डिसीज़। सेकेंडली, मदर टू चाइल्ड, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और वो HIV पॉजिटिव है तो उससे वो अपने बेबी को ट्रांसमिट कर सकती है 3 वे से। एक, प्लासेंटा से, डायरेक्ट रूट, मतलब बेबी पेट में है, अंदर प्लासेंटा है और ऑक्सीजन भी जा रहा है और उसके साथ HIV भी चला जाता है। वायरस इतना छोटा होता है कि वो चला जाता है। सेकेंड वे है ब्रेस्ट मिल्क से। सो आज मालूम पड़ा कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी HIV वायरस रिलीज़ होता है एंड WHO रेकमेंड करता है कि आप अगर अफोर्डिंग वाले कंट्रीज़ में हो तो प्लीज़ डोंट ब्रेस्ट फीड, बट इफ़ यू आर इन अ पुअर कंट्री यू कैन स्टिल ब्रेस्ट फीड विद टैबलेट। आप HIV का टैबलेट भी लो और आप फीड भी कर सकते हो, क्योंकि वायरस का क्वांटिटी कम हो जाता है तो स्प्रेड कम हो जाता है। थर्ड वे इज़ विच इज़ पिकिंग अप नाउ डेज, दैट इज़ शेयरिंग ऑफ इंजेक्शंस। आजकल ड्रग अब्यूज़ बहुत बढ़ गया है एंड आई हैव सीन many patients which are not getting HIV through sexual contact, not even through pregnancy, but through drug abuse. मेरे पास एक पेशेंट था, उसकी मम्मी उसको लेके आई एंड शी वॉज क्राइंग, OPD में आई, रो रही है। हमने पूछा क्या हुआ मैडम, तो वो बोलती है कि मेरे बच्चे को HIV हो गया। मैंने बोला तो, बोले मेरे वजह से हुआ। मैंने बोला कैसे, आप पॉजिटिव हो? बोले नहीं, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको डांटा, तो डांटने के बाद वो ड्रग एब्यूज़ करने लगा। और ड्रग एब्यूज़ में ऐसा है मुंबई में कि एक सिरिंज में ड्रग भरते हैं और 5 लोगों को इंजेक्शन देते हैं और वो खुद के हाथ से इंजेक्शन लेते हैं, तो किसी एक का होगा तो सबको स्प्रेड होगा, वही नीडल सबको स्प्रेड होती है। हालांकि आजकल ये बहुत कम हो गया था, लेकिन स्टिल इट इज़ पिकिंग अप एंड नाउ-डेज द सिनेरियो इज़ कि गे पॉपुलेशन और ड्रग एब्यूज़र्स में इतना HIV ज़्यादा है कि वी नो लॉन्गर से दैट हैव सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, इट इज़ जस्ट प्रिडोमिनेटली द नीडल शेयरिंग। एंड थर्डली, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो रिसेंटली कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि झारखंड में थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं, जिनको ब्लड प्रॉब्लम है, जिनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है बिकॉज उनका हीमोग्लोबिन बार बार कम होते रहता है, सो उन लोगों को ऐसे 11 बच्चे हैं जिनको HIV पॉजिटिव मालूम पड़ा है और HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऑफिसर जो है उनको ये कर दिया है, निलंबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि HIV खून से भी स्प्रेड होता है। अगर किसी HIV पॉजिटिव पर्सन ने डोनेट किया है ब्लड और वो ब्लड किसी और को मिलता है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको पता है, अमिताभ बच्चन को कूली पिक्चर के टाइम पेट को वो लग गया था, बराबर, उनका स्प्लीन रप्चर हो गया था और उनको ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में बहुत सारे ब्लड के बैग्स दिए, लेकिन उस ज़माने में हेपेटाइटिस बी वायरस मालूम नहीं था, जो HIV की तरह एक वायरस है, और बहुत सारा ब्लड मिलने की वजह से ही हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, और वो खुलेआम बोलता है कि मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ। आज लोग डरते हैं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ बोलने के लिए। आज सुबह मैं एक पेशेंट देखने गया था, मुझे हिस्ट्री मालूम नहीं था, मैंने जस्ट जाके खड़ा हुआ तो वहाँ के जो नर्स थी वो मुझे बोलती है सर पेशेंट पॉजिटिव है। मैंने बोला क्या पॉजिटिव है? TB पॉजिटिव है? नहीं सर, वो नहीं, TB नहीं। कोविड पॉजिटिव है? नहीं सर, वायरस पॉजिटिव है।
तो पेशेंट बाजू में था, वो इतना डर गया वो सुन के कि उसको कुछ तो भी पॉजिटिव है और कुछ तो भी वायरस है। तो ये स्टिग्मा जो है, ये अमिताभ बच्चन ने बोल के दिखाया कि आई एम हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, एंड हमको ये स्टिग्मा को HIV के अंदर भी इनकलकेट करना है ताकि पेशेंट खुलेआम भी इजीली डिस्कस कर सके कि वो पॉजिटिव है, राइट। अभी किस चीज़ से HIV नहीं स्प्रेड होता है, राइट। तो HIV जो है सलाइवा से स्प्रेड नहीं होता है, तो किसिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सिमिलरली हगिंग से स्प्रेड नहीं होता है, आप गले मिलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज़ शेयरिंग ऑफ फूड। हाँ, आप एक ही प्लेट में HIV पॉजिटिव के पेशेंट के साथ भी खाना खा सकते हो। मच्छर काटने से, मॉस्किटो बाइट, नहीं, उससे भी नहीं होता है। शेयरिंग ऑफ टॉयलेट्स, तो यूरिन और स्टूल के अंदर HIV पास नहीं होता है, तो शेयर कर सकते हैं, दे कैन यूज़ द पब्लिक टॉयलेट्स ऑल्सो। बाथरूम यू कैन शेयर विद देम, ओके। स्नीजिंग एंड कफिंग, जब तक उसमें ब्लड नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस वायरस स्प्रेड का। एंड थर्डली स्वेटिंग, तो जैसे होता है ना कि मेरे पास एक पेशेंट था, वो बोला था कि सर मेरा ना एक वर्कर है वो HIV पॉजिटिव आया है, मैं उसको निकाल दूँ क्या काम पे से, वो खाना बनाता है मेरे यहाँ पे। तो हमने कहा नहीं, अगर वो गोली खा रहा है तो वो स्प्रेड नहीं करेगा आपको, राइट। सो जनरली इतना हमने नॉलेज देने के बाद हमको क्या लगता है कि HIV करता क्या है। हाँ, तो इम्यून सेल को नष्ट कर देता है। इम्यून सिस्टम ख़त्म होने की वजह से क्या क्या होगा, जब इनिशियली वायरस अंदर चला जाता है तो पहले कुछ दिन वो वायरस फाइट करता है ह्यूमन के साथ, ह्यूमन सेल के साथ, और उस टाइम पेशेंट को फीवर होता है, हेडेक होता है, गला ख़राब होता है, क्योंकि यहाँ वायरस जो है इम्यून सेल्स को डैमेज करता है। तो मोस्टली ना हमारे इम्यून सेल्स थ्रोट के अराउंड रहते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि लंग्स से, हवा से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अंदर जाते हैं। तो पेशेंट को बार बार सोर थ्रोट होता है, एक्सट्रीम फटीगेबिलिटी, बार बार थक जाता है, फिर रात को उनको ठंडी बजती है, बदन दर्द करता है, और मैंने जैसे बताया कि लिम्फ नोड बड़े होते हैं क्योंकि बॉडी फाइट करती रहती है, तो लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों को रैश आती है बॉडी के ऊपर, एंड कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि बॉडी फाइट करती रहती है, उनका इम्यून सिस्टम स्टार्टिंग में जो स्ट्रॉन्ग रहता है तो कुछ नहीं होता है। फाइनली जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, इम्यून सेल्स कम होते जाते हैं, और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि सेल्स 500 से नीचे चले जाते हैं, तो पेशेंट को फिर तकलीफ़ होती है, उनको खांसी होती है, बेसिकली उनको दम लगने लग जाता है, उनका वज़न कम होने लग जाता है, उनको लूज़ मोशंस होते हैं, उनको हाई ग्रेड फीवर स्पाइक्स आने लग जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि सेल्स 100 के नीचे चले जाते हैं। तो इतना इम्यून सिस्टम पुअर हो जाता है कि उनको हर छोटा बीमारी बड़ा हो जाएगा। जैसे उनको सर्दी होगी वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको नॉर्मल यूरिन में इन्फेक्शन होगा तो वो किडनी में चला जाएगा, उनको पेट का इन्फेक्शन होगा तो वो ब्लड में आ जाएगा। सो पेशेंट विल हैव परसिस्टेंट हाई ग्रेड फीवर्स, पेशेंट को लूज मोशंस होंगे, रैशेस होंगे, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, और हर वो चीज़ होगी जो नॉर्मली सब में होती है बट उनमें बहुत सीवियर होंगी। तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर के सेल्स है ये नॉर्मल ह्यूमन के वाइट सेल्स है, राइट, और ये बिफोर HIV इन्फेक्शन है। अब जब एक्यूट इन्फेक्शन होता है, वायरस सेल के बाहर ही है अभी तक, हाँ, अंदर नहीं घुसा, तो लड़ाई कर रहा है, हाँ, ये फर्स्ट 4 वीक्स टू मंथ्स के अंदर ऐसा स्टेटस आता है कि बॉडी के वाइट सेल्स भी है और वायरस भी है। धीरे धीरे वो सेल फुट के इतने कम हो जाते हैं कि एक स्टेज आ जाती है कि हमारे बॉडी में एक भी सेल रहता नहीं है। इतना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन 100 के नीचे होते हैं, इसलिए उस स्टेज को बोलते हैं एड्स। तो एड्स और HIV सेम है क्या? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है रेड कलर का ये वायरस है। जब इनिशियली हमको इन्फेक्शन होता है तो वायरस धीरे धीरे बढ़ के 1000 कॉपी हो जाती है। 1 ml खून के अंदर हज़ारों कॉपीज़, और इतने भयंकर कॉपी के अंदर भी बॉडी फाइट करती रहती है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इम्यून सेल्स है। आप देख सकते हो इम्यून सेल्स कितने अभी 1200, और धीरे धीरे सेल फुट के ये पूरा ब्लू लाइन 0 तक लेके आती है और वायरस फुल ब्लोन डिसीज़ में चला जाता है। तो ये जो फेज़ है जिसके अंदर बॉडी फाइट करती रहती है, इसको बोलते हैं क्लिनिकल लेटेंसी। मतलब पेशेंट घूमता फिरता रहता है, उसको कुछ होते भी रहता है तो भी उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, और वो स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने जो आपको पहले बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद कुछ लोगों को HIV हो गया, तो वो शायद इस जोन में थे जिसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड, जिसमें वायरस बॉडी में रहता है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। इसलिए आज जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो NACO के गाइडलाइंस है
कि आप सब पेशेंट का बेसलाइन मतलब जो डोनेट करने वाला है उसका HIV चेक करो। अगर वो पॉजिटिव होंगे तो उसका ब्लड फेंक दो, उसको वापस भी मत दो, फेंक दो और उसको ART सेंटर पे भेजो, राइट। सो ये एक जस्ट डायग्राम है कि बॉडी का कौन सा पार्ट वो अफेक्ट करता है, और आप देख सकते हो वो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसको HIV ने नहीं छोड़ा है। ब्रेन से लेके यूरिन के एरिया तक सब कुछ अफेक्ट, मसल से लेके पैर, ऑल पार्ट, स्किन भी अफेक्ट हो जाती है। और एक पेशेंट का फ़ोटो है अफ्रीका का, ऐसी डिबिलेटेड कंडीशन आ जाती है, ऐसी स्टेटस आ जाती है कि पेशेंट को कोई छूता भी नहीं है और वो कुछ खा भी नहीं सकता, और पूरा बॉडी का अंदर से इम्यून सिस्टम ख़त्म होने की वजह से उनका बॉडी वीक हो जाता है। ये कुछ फ़ोटोज़ है और ये सब HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के हैं। तो एक जस्ट ब्रीफ बताता हूँ, ये ब्रेन इन्फेक्शन है। ब्रेन में ऐसे बड़े बड़े एब्सिस बन जाते हैं। सिमिलरली उनको खतरनाक निमोनिया होता है। हमको जनरली निमोनिया होता है बैक्टीरिया का, इनको निमोनिया होता है फंगस का, इनको निमोनिया होता है दूसरे वायरसेस का। लीवर में इन्फेक्शन होता है, स्किन में इन्फेक्शन होता है, एंड फाइनली एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर भी हो सकता है HIV की वजह से, जिसको बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा। तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं HIV ट्राइडॉट। वो बहुत इजीली अवेलेबल टेस्ट है, एंड आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, आपका परमिशन लिया जाएगा कि आप HIV टेस्ट करना चाहते हो, और वो फ्री में आपका HIV टेस्ट करेंगे। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे कि ये पर्सन HIV पॉजिटिव है, कि इसके आधार से लिंक्ड है, उसके हर जगह पे फ्लैश होगा कि HIV पॉजिटिव है। सो इट इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट एक इन्वेलप में दिया जाता है और आप ही को रिपोर्ट बताया जाता है और किसी को भी नहीं बताया जाता है, राइट। तो इस टेस्ट का एक ही प्रॉब्लम है कि वो जो है लेटेंट फेज़ को वो कैच नहीं कर पाता। जो मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल लेटेंसी फेज़ होता है, ये वाला बीच वाला फेज़ क्लिनिकल लेटेंसी, ये फेज़ को वो कैच नहीं कर पाता, इसलिए बहुत टाइम ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। इसको ब्रेक करने के लिए एक नया टेस्ट है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट बोलते हैं, जो HIV पर्सन का 10 डेज़ मतलब 10 डेज़ पहले भी अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो पॉजिटिव दिखाएगा, राइट। तो इसका ट्रीटमेंट है क्या? तो है इसका ट्रीटमेंट। तो मैं मेरे पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि HIV इज़ फुल्ली कंट्रोलेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज़ नॉट क्यूरेबल बट इट इज़ कंट्रोलेबल। आपको डायबिटीज़ है, आपको BP है, तो आप कैसे रोज़ गोली खाते हो तो आपका BP कंट्रोल में रहता है, आपका शुगर कंट्रोल में रहता है, उसी तरह से HIV भी फुल्ली कंट्रोलेबल डिसीज़ है। आप गोली खाते रहो, आपका वायरस दबता रहेगा, आपका वायरस सोता रहेगा, वो जागेगा नहीं, वो दूसरे सेल्स को परेशान नहीं करेगा, राइट। सो HIV इज़ फुल्ली कंट्रोलेबल। उसके मेडिसिन का नाम जो है उसको बोलते हैं हार्ट थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, राइट। थोड़ा सा वर्ड कठिन है लेकिन काम बड़ा भारी करता है। वो वायरस को ना बोलता है तो सो जा, उसके जो बच्चे हैं वो होने नहीं देता है, सो कॉल्ड उसके जो रेप्लिकेशन मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। वो मार नहीं सकता, लेकिन उसको वायरस जो है वो बदमाश होता है, वो अंदर जाके सो जाता है। जब उसको मालूम पड़ता है कि पेशेंट ने दवा बंद कर दिया है तो वो वापस एक्टिवेट हो जाता है, वापस उसका जनरेशन बढ़ाते जाता है और इम्यून सेल्स को खाते जाता है। तो क्या होता है कि ये पर्सन जो HIV की मेडिसिन खाता है वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, क्योंकि उसका वायरस पूरा सप्रेस हो जाता है, एंड उसका जो लाइफ स्पैन है, मैं हमारे पेशेंट को बोलता हूँ, वो पेशेंट डर जाते हैं पहली बार कि अभी मेरा आयुष्य 4-5 साल में तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि पहले से ही सुनते आए हैं। तो उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन रहता है, जो नॉर्मल लोगों का लाइफ है इंडिया में 65 ईयर्स टू 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स, वो उसी को जो नेचर ने उनको डेट दिया है उसी डेट तक उनका लाइफ रहेगा। तो क्या होता है कि जैसे ही मेडिसिन खाना शुरू करते हैं, आज की जो थेरेपी है, जो 15 साल पहले थेरेपी थी उससे काफ़ी एडवांस है। ये वायरस को 1 महीने के अंदर ही बिलो 50 लेके आते हैं। मेरे पास पेशेंट है जिनके ब्लड में वायरस के जो कॉपीज़ है, मतलब वायरस का जो लोड है 1 करोड़ कॉपी, 2 करोड़ कॉपी, जैसे इतने से खून के अंदर करोड़ों वायरसेस है, लेकिन 1 महीने के भीतर उनके सेल्स जो है, उनके वायरसेस जो है लेस देन 50 तक पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो इम्यून सेल्स है जो कम हुए थे वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। एंड जब वो 1500 के 1000 के ऊपर चले जाते हैं तो इफ़ यू कैन सी 3 महीने के अंदर ही वो नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। तो पहले 3 महीने HIV के पेशेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन फ्रॉम रेड जोन टू येलो जोन टू फाइनली ग्रीन जोन ऐसे स्टेज में आ जाते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एंड
मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज जो थेरेपी है, आई एम सो हैप्पी टू से दैट नाउ अ स्टेज हैज़ कम वेयर यू कैन कम्प्लीटली से दैट वायरस इज़ अनडिटेक्टेबल इन माई ब्लड। खून में वो वायरस है ही नहीं, एंड यू बिकम यू इक्वल्स टू यू, यानी यू आर अनडिटेक्टेबल इन योर ब्लड एंड यू कैनॉट ट्रांसमिट द डिसीज़। तो इसका मतलब क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ डाउट है आपको अब तक? हमारा मेडिसिन इतना एडवांस है कि वो वायरस को वो सेल के अंदर ही बोलता है कि तू इधर ही सो जा, सप्रेस कर देता है। वो मार नहीं सकता, लेकिन उसको वहाँ पे उसका जो रिप्रोडक्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जो इम्पोर्टेंट ये है क्लू है जिसकी है रिप्रोडक्शन के लिए, उसी को वो छीन लेता है। तो वायरस ना रेप्लिका है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, इसलिए वायरस बिकम्स अनडिटेक्टेबल इन द ब्लड। और एक बार वो सो गया तो वो ट्रांसमिट भी नहीं कर सकता। तो फिर मेरा बॉडी खुद किल क्यों नहीं कर सकता HIV वायरस को? जैसे डेंगू का वायरस भी वायरस है, वो मर जाता है। चिकनगुनिया का वायरस भी वायरस है, वो भी मर जाता है। मेरा बॉडी इम्यून सिस्टम उसको मार डालता है। तो उसके 3 रीज़न्स हैं। एक, ये जो वायरस है ना, वो खुद के, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत भारी है, वो कैसे डिटेक्ट करता है कि हमारे को इन्फेक्शन हुआ है? जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन जाता है ना अंदर, तो ऑफ कोर्स वो फॉरेन पार्टिकल है। जैसे पाकिस्तान की आर्मी आएगी तो उनके ऊपर हरे कपड़े रहेंगे, हरी टोपी रहेगी, या फिर कुछ तो भी रहेगा जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये इंडियन नहीं है, राइट? तो हम उसको शूट कर देंगे। बट वायरस बहुत शातिर है, वो क्या करता है, खुद के जो कपड़े हैं ना वो निकाल के फेंक देता है, और ह्यूमंस के ही जो नॉर्मल सेल्स के ऊपर का जो कोटिंग रहता है वो पहन लेता है, वो ऊपर का कोट पहन लेता है और मस्त घूमता है बॉडी के अंदर, तो उसको पकड़ नहीं सकते। तो हाँ, ये ऐसा होता है। मतलब ये माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा ना लोगों ने, पीपल वाज एस्टोनिश्ड कि कितना बदमाश है ये वायरस, राइट? सिमिलरली वो ऐसे सेल्स में जाके सो जाता है जो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, जैसे कि बॉडी के ब्रेन सेल्स, उसमें जाके सो जाता है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो वापस एक्टिवेट होगा। और एक तो मैंने बताया कि वो खुद इम्यून सेल्स को मार डालता है। तो जब वो खुद इम्यून सेल्स को ही मार रहा है, वो हमारे सोल्जर्स को मार रहा है, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम कैसे पकड़ पाएगा उसको, राइट? जो मैंने दिखाया ना, ये देखो इतना ये है, ये हमारा ह्यूमन सेल है, ये छोटा छोटा जो है ये वायरस है, ठीक है? ये अंदर घुस रहा है अभी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये अंदर कुछ जो रहते हैं बर्स्ट होने के बाद इसे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ना अंदर रुक जाते हैं डॉर्मेंट स्टेज में। एंड ये जो है ये ह्यूमन सेल है, ऐसा बड़ा सा, उसके अंदर से जब वो बाहर निकलता है ना, देखो कैसे बाहर निकल रहा है, वो हमारे सेल के ऊपर का कोटिंग खींच के लेके जा रहा है। अंदर ग्रीन कलर का जो है एज यूजुअल पाकिस्तानी, तो वो रेड कलर का हमारा खुद का कोट पहन के बाहर निकल रहा है, ठीक है? इसकी वजह से वायरस कैच नहीं कर सकते, इसलिए हम वायरस को बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती कि वो हमको तकलीफ़ दे रहा है। तो HIV जैसे मैंने आपको बताया, मुझे एक बार हुआ तो ये डेथ सेंटेंस है क्या, मैं मर जाऊंगा क्या? तो नहीं, विद रेगुलर मेडिसिन वायरस इज सप्रेस्ड एंड योर इम्यून सिस्टम ग्रेजुअली पिक्स अप एंड यू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, ड्रग एब्यूज़ करते हैं, फिर फाइनली उनको फटके मिलते हैं और फिर वो सुधरते हैं, फिर वो पूछते हैं कि हम शादी कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो हमको बच्चे हो सकते हैं क्या, और अगर हुए तो उनको भी HIV होगा क्या? तो ऑफ कोर्स दे कैन मैरी। सो HIV नेगेटिव पर्सन कैन मैरी ए HIV पॉजिटिव पर्सन, और इतना होने के बावजूद भी उनको भी HIV नहीं होगा, पार्टनर को, और उनके बच्चों को भी नहीं होगा। विद दिस न्यू थेरेपी जो आई है, जो हमारे गवर्नमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, एंड वन ऑफ द क्रेडिट गोज़ टू द हेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। कौन है माइक्रोसॉफ्ट का हेड? बिल गेट्स। तो बिल गेट्स फाउंडेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2010 में $1 मिलियन का सैंक्शन दिया था, लेकिन वो भी हम कर नहीं पाए। लेकिन फाइनली उन्होंने खुद ने हमारे लिए मेडिसिन बना के दिया। हमारे जो बॉक्सेस मिलते हैं मेडिसिन के, उसके ऊपर लिख के आता है दिस मेडिसिन हैज़ बीन डोनेटेड बाय बिल गेट्स फाउंडेशन। सो उससे वायरस काफ़ी सप्रेस होता है, एंड दे कैन मैरी एंड हैव ज़ीरो ट्रांसमिशन टू देयर चिल्ड्रंस, एंड दैट्स द कंसेप्ट टुडे, दैट U इक्वल्स टू U इस, राइट? एंड फिर भी कुछ लोगों को स्टिग्मा रहता है कि नहीं, अगर ये HIV पॉजिटिव है इसका मतलब इसका ब्रेन कुछ बराबर नहीं है, कुछ साल के बाद वापस वो वही रास्ते पे चला जाएगा जहाँ से इसको वायरस आया था।
इसलिए HIV ब्यूरोज होते हैं। एंड ये कॉमन वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको HIV पॉजिटिव पेशेंट का मैट्रिमोनियल साइट भी है। तो jeevansathi.com, jeevansathi.com पे भी यू कैन फाइंड HIV पॉजिटिव गर्ल्स, HIV पॉजिटिव मेल, एंड दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। तो सेम क्वेश्चन कि HIV पॉजिटिव वर्कर को काम पे रख सकते हैं क्या? येस, ऑफ कोर्स यू कैन शेयर यूटेंसिल्स, टॉयलेट, इवन स्विमिंग पूल। तो HIV पेशेंट को देख के बोल सकते हैं कि इसको HIV है? नहीं, इसको देख के किसी को नहीं बोल सकते कि इसको HIV है। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे, पूछना चाहता हूँ कि टफ क्वेश्चन है, कैन आई हैव सेक्स विथ HIV पॉजिटिव पर्सन? मैं निगेटिव हूँ, सामने वाला मुझे पता है पॉजिटिव है, और मैं उसके साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ विदाउट कॉन्डम, कर सकता हूँ क्या? तो क्वेश्चन मार्क ऊपर चला गया, ओके। नहीं मैम, वो तो पेशेंट अगर मेडिसिन खा रहा है तो उसका लाइफ नॉर्मल रहेगा। इधर स्टेटस ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि सामने वाला पर, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, अभी भी आते हैं, बोलने को नाम नहीं बताऊंगा किसी का, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं सैलून में गया था, मैं थाईलैंड गया था और फिर फॉर्म में हो गया, तो क्या करूं? सो कोई बता सकता है आप में से कि ये यस है या नो है? आइडियली नो है, यस, इथिकली मॉरली इट इज़ नो, बट वी हैव कम अप विथ न्यू मेडिसिन्स, देर आर नोन एज, दैट इज़ नोन एज प्रेप, मतलब प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जैसे हम वैक्सीन लेते हैं ना कि हमको बीमारी ना हो, उसी तरह से HIV ना हो इसके भी मेडिसिन मिलते हैं, और वो खा के यू कैन हैव कॉन्टैक्ट विद अ पॉजिटिव और अननोन पर्सन। अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है और आपको स्टिल यू वांट टू हैव, देन यू कैन टेक द मेडिसिन फॉर 3 days and you can have. So this is known as PrEP, and you can prevent to get the disease. Those medicines are to be taken once in lifetime, and then you can go on. So the crux is right sir. So the crux is कि वो मेडिसिन ना वो 3 ही दिन एक्टिव रहता है बॉडी में, तो वो 3 दिन का जो फेज रहता है उसके बाद अगर आपको वापस जाना है, यू हैव टू टेक द मेडिसिन अगेन। यस सर, करेक्ट। सर ने जैसे बताया कि HIV कॉन्डम से तो सिर्फ एक ही बीमारी प्रिवेंट नहीं हो मतलब बच सकती है, जैसे बट पेशेंट को दूसरी बीमारियां भी हो सकती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, बहुत सारी बीमारियां है जो, बट उसको प्रोटेक्शन नहीं है, हालांकि उसको ट्रीटमेंट है, लेकिन यस। तो और कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा है? यस सर। यस सर, सो वैक्सीन बन रहा है, तो हम कुछ वैक्सीन ऐसे बना रहे जो वायरस के इनर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करे, क्योंकि बाहर से तो वो कोट कर लेता है अपने आप को। तो वी आर गोइंग इन द स्टेज जिसको हम कोविड के टाइम mRNA वैक्सीन बनाया था। सिमिलरली, क्योंकि कोविड का वायरस भी RNA वायरस है और HIV भी RNA वायरस है, तो उसी के प्रिंसिपल्स पे काम चालू है। लेकिन जैसे हमको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी बहुत फॉर्म में है, वो हर जगह पे बाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, दैट इज़ अफ्रीका में जैसे वायरस का बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो वहाँ पे बहुत रिसर्चेस होते हैं, वहाँ पे अमेरिका की बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरीज़ है, उन्होंने उस सब का फंडिंग स्टॉप कर दिया है, उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने फंडिंग स्टॉप कर दिया। तो ये सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो है पिछले 4-5 महीने से स्टॉप हो चुके हैं। वी आर गोइंग टू हैव गुड मेडिसिन्स एंड गुड वैक्सीन्स, बट द रिसर्च प्रोसेस रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंड्स। पैसों के बगैर तो काम नहीं हो सकता, क्योंकि मशीनरीज है, इतनी रिसर्च है, साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। So unfortunately that part has been stopped. So this year's HIV day, 1st of December, they have got a theme and which says that please don't stop the grants for HIV detection and HIV cure, because we are coming to that stage probably where HIV can be cured, but उसके लिए जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो रिसर्च लग रहा है, उसका ग्रांट स्टॉप हो चुका है। यस सर। सर आपका क्वेश्चन?
राइट सर, उसका किसी का अभी तक वैक्सीन नहीं बना है. राइट He's सर, having been there for 7 years. यस सर. Corona, how did they manage to find a vaccine for within 3 years, and whether that vaccine was actually a valid vaccine or it was just a Right, sir. something which everybody got pulled into? Absolutely, very nice question, sir. So now, all viruses has got a sensor on their head. After few replication, they stop replicating, क्योंकि उसका जो सेल रहता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं हो पाता, और इट होल्ड्स फॉर ऑल वायरसेस. तो कोविड का जो वायरस है ना, उसको भी हमने उसी तरह से आर्टिफिशियली वैक्सीन में बनाया. तो हमारे पास 2 वैक्सीन थे, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, जो कोवैक्सीन हैदराबाद में बनता था. तो हमने क्या किया कि कोवैक्सीन में हमने पूरा का पूरा वायरस लिया, उसको मार डाला. मतलब उसको हमने उसका जो अंदर का जो एक सेंसर है जिससे वो रेप्लिकेट होता था, उसको हमने बंद कर दिया. सिर्फ कुछ सेल्स ही उसमें एक्टिव रहेंगे, 1-2 साइकिल के बाद वो खुद भी मर जाएंगे. इसलिए कोविड का वैक्सीन जब देते थे, पेशेंट को बहुत बुखार आता था, बहुत दर्द होता था, राइट. So we used to give the entire virus. Of course, it was attenuated. We call it live attenuated virus. We don't give the entire live virus. We gave it in a attenuated form. उसको हमने क्या बोलते हैं, डिग्रेड करके उसका पावर कम करके हमने बॉडी में इंजेक्ट किया. सिमिलरली जो कोविशील्ड था, इट वॉज mRNA वैक्सीन विच इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वायरस. तो हमने वायरस को ब्रेक किया, उसके टुकड़े किए, और उसमें से सबसे जो डेंजरस है, जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा आइडेंटिफाइंग कि ये वायरस है, हमने उस टुकड़े को इंजेक्ट किया. उससे भी बुखार आता था, बिकॉज इट वॉज अ लाइव पार्ट ऑफ द वायरस. इट वॉज नॉट कम्प्लीटली डेड वैक्सीन लाइक पोलियो वैक्सीन जो हम ओरली लेते हैं. सो इट वॉज ऑफकोर्स अ ट्रू वैक्सीन, बट सिंस वायरस हैज़ गॉट अ टेंडेंसी टू रेप्लिकेट, इट रेप्लिकेटेड. सो हम क्या करते थे कि हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स चेक करते थे ब्लड में कि वैक्सीन देने के बाद उसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रहे क्या, बॉडी उसको न्यूट्रल कर रही क्या. तो कोविड के अगेंस्ट जो बॉडी इम्यून ये बनाती थी, रिएक्शन बनाती थी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती थी, हम इसको चेक करते थे. अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट सो इफेक्टिव लाइक अदर वैक्सीन्स, कि वो जाके तो इम्यून सेल्स तो बनते थे, लेकिन वो वायरस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते थे. दैट वाज द प्रॉब्लम विथ कोविड वैक्सीन्स. But why then these other diseases, dengue and all, been there for years? अभी तक vaccine क्यों नहीं बन रहा है? So, 2 things. One is that virus is not deadly. Of course, dengue से लोग मरते हैं. So when you put a research, when you put thoughts in producing vaccines, there is some thought कि how deadly is the disease. कि इससे अभी स्मॉल पॉक्स है, पेशेंट का आँख चला जाता था, पेशेंट को बहुत डेबिलिटी होता था, निमोनिया होता था, पेशेंट यूज्ड टू डाई, ब्रेन में चला गया. तो इट वाज डेडली डिसीज. इसलिए उसका वैक्सीन बनाने के लिए बहुत रिसर्च, बहुत थॉट्स. तो कोविड वैक्सीन के लिए भी इसलिए सब रैम्पेंट काम हुआ. एंड जब वायरस इतना नाजुक है, जैसे डेंगू वायरस है या फिर चिकनगुनिया वायरस है, जो खुद से ही मर रहा है, तो वैक्सीन बनाने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं डाले. हालांकि डेंगू वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है, और डेंग वैक्सिया जापान में ऑलरेडी अवेलेबल है. तो डेंगू के 4 सीरोटाइप है. एंड सिमिलरली HIV के अंदर भी 2 टाइप के HIV होता है, HIV-1 एंड HIV-2. हालांकि इंडिया में HIV-2 इतना दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी सब टाइप्स होते हैं उसके. तो वैक्सीन अगर बनाना हो तो हमको सब के अगेंस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं कि पेशेंट को कौन सा 1 हुआ है, 2 हुआ है. उसके अंदर भी A B C D E F ऐसे 14 टाइप्स है. तो हर एक के ऊपर वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका जो लोड रहता है वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का लोड चाहिए, तभी वो बॉडी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर पाएगी. सो द लोड रिक्वायर्ड विल बी टू मच. तो पेशेंट को हर 6-6 महीने में अलग अलग सीरोटाइप का वैक्सीन लगाना पड़ेगा. लेकिन जो इंडिया में अभी आने वाला है डेंगू वैक्सीन, सून जापान में तो आ गया है सीरोटाइप 2 विच इज़ मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ डेंगू, उसके अगेंस्ट वैक्सीन आ चुका है. इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब ट्रायल्स वगैरह करने पड़ते हैं. बट जापान में आप जाओगे तो तुरंत लगा के आ जाना. They are so clean, they are so hygienic people, but like since it was one of the most populated country of the world, Tokyo is like the most populated city on the earth. So that's why they have made, क्योंकि so जब भी डेंगू पेशेंट आता है ना, एक को नहीं होता है, आजू बाजू के 100 मीटर के अंदर एक आध और पेशेंट तो रहेगा ही. मैं लीलावती हॉस्पिटल में काम कर रहा था, यश चोपड़ा एडमिट थे, उनको डेंगू हुआ था. अनफॉर्चुनेटली ही डाइड ऑफ डेंगू. तब वो कौन सा उनका मूवी था, उनका प्रमोशन चालू था, सो ही वॉज बिजी एंड ही डाइड ऑफ डेंगू.
तो बीएमसी जो है बहुत एक्टिव है, तो बीएमसी ने उनके घर के आजू बाजू 100 मीटर्स का एरिया को पूरा चेक किया, और अभी भी करते हैं जिधर भी डेंगू का पेशेंट पॉजिटिव आता है। और उनको मालूम पड़ा कि इनका जो डेंगू है वो उन्हीं के घर के अंदर फ्लावर पॉट के अंदर नीचे जो पानी रखा था, उसकी जो डिश थे उसके अंदर वो डेंगू का वायरस मच्छर ग्रो हो रहा था। सो डेंगू इज़ सेल्फ लिमिटिंग, दैट्स वाई वैक्सीन्स का इतना फोकस नहीं है। बट ऑफ कोर्स देयर आर वैक्सीन फॉर डेंगू, मलेरिया के लिए भी वैक्सीन आ रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है। और या But tell me, in your study, Yes, sir. this corona, was it a genetically manufactured virus as claimed by most of the world, or it was something like the malaria or the other virus? तो ना रिसर्च के लिए हम वायरसेस को मॉडिफाई करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं कि कोरोना वायरस ना मेरे एमबीबीएस में भी था, मैंने एमबीबीएस 2012 में किया है, और मेरे सेकंड ईयर 2013 में था। तो तब उसमें ना 3 लाइन का ही कोविड वायरस था, उसका नाम था कोरोना वायरस। उसको ना ये जो गले का हिस्सा है ना, इसको ऐसे रिंग रहते हैं, आप हाथ लगाओगे ना तो आपको रिंग पल्पेट होगी, उसको ये पार्ट बहुत पसंद है, इसलिए उसका अगर हमको लैब में ग्रो करना होगा ना तो हम उसको ट्रकियल रिंग पे ग्रो करते हैं, इसलिए उसका नाम ही रख दिया कोरोना वायरस। अब हुआ कैसा कि जब एक पर्टिकुलर वायरस हम डिटेक्ट करते हैं, कोई औरत पे सपोज एक वायरस डिटेक्ट हुआ, तो हम उसका एक स्ट्रेन संभाल के रखते हैं, ताकि भविष्य में आपको सपोज कभी आपको लगा कि आपको स्मॉल पॉक्स पे रिसर्च करना है, स्मॉल पॉक्स तो अर्थ से इरेडिकेट हो गया, गायब हो गया, पर आपको रिसर्च करना है, तो एक वायरस लैब में रखा रहता है। अब सो कॉल्ड चाइना में, हुआन में, इन्होंने कोई वायरस बायो टेररिज्म के लिए शायद बना रहे थे, क्योंकि इतना उन्होंने नॉलेज कॉन्फिडेंशियल रखा है इस चीज़ को। एंड वो म्यूटेशन के अंदर दे वांट एनिमल्स का ट्रकियल रिंग्स टू स्टोर। तो कहाँ से लाएंगे ना इतने एनिमल्स, तो जो अपने स्लॉटर हाउस है वहाँ के उन्होंने बहुत सारे सैंपल पे उन्होंने ग्रो किया, एंड उसके अंदर वो अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड हो गया। सो हुआन वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ स्लॉटर हाउस, एंड फ्रॉम देयर द फर्स्ट केस वाज डिटेक्टेड टू फ्रॉम द स्लॉटर हाउस का ही एक वर्कर था। Whenever someone donates blood, it is compulsory to check collection. Yes, sir. I am just curious, in Jharkhand, if 11 children got virus, maybe you can base it in that later period, you use the primitive methods. But one donor donated to 11 children, other than 11 positive patients who have donated to 11 children, that's why, because just one donor donating to Cannot. 11 children is difficult. नॉट पॉसिबल, एब्सोल्युटली सर। जैसे सर ने बताया कि एक डोनर जो है वो एटलीस्ट एक ही ब्लड दे सकता है। सो डोंट नो सर, बिकॉज झारखंड इज़ सच अ रॉ एरिया, हमारा इंडिया का सबसे बैकवर्ड पार्ट, ऑफकोर्स इट इज़ द हब ऑफ इंडस्ट्रीज़, बट वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का जो हेल्थ मैनेजमेंट है इज़ वेरी बैड एंड अनफॉर्चुनेट, बट why it happened don't know, that's why they are investigating, hopefully they could get some answer. But one part is there कि कोई एक डोनर होगा जिसका लेटेंट फेज में होगा और उसने डोनेट किया है, so that can transmit the disease, very unfortunate. That's why whenever you go for a better setups, they check HIV from different methods, they check from 3 different methods and then they give the report as negative. No. So in TriDot, the basic principle is we check the antibodies. TriDot में हम antibodies check करते हैं and it can come positive lifelong. Even if patient is better, lifelong वो positive आता है. Same like डेंगू, हम डेंगू का अगर IgG check करेंगे तो lifelong positive आएगा. Yes sir, thank you sir. Thank you for the opportunity to interact with you all. It was amazing to have a discussion.